Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter The Emperor Who Gave Up War, and under this chapter we have discussed about the administration and how the empire was ruled. As we know, empire is a very big kingdom. The territory is very large, and in case of Mauryan Empire we have seen that there are three main cities in that empire, that is Ujjain, Takshashila and Patliputra. Patliputra was the capital city and Takshashila and Ujjain were the provincial cities. And in a capital city there was direct control of the emperor. The emperor appointed officials for tax collection, then messengers and spies, all were appointed by the emperor. And the complete administration of the capital is done by the emperor. And in provinces there are provincial capitals, and in these provincial capitals there was control of the emperor to some extent. The control was not complete. It was because the empire was very big and it was not possible to control completely these provincial capitals because they were very far away from the capital. So what happened that governors were appointed for these provincial capitals, and these governors were usually the prince of the family, royal family के prince जो होते थे उनको ही governor appoint किया जाता था. And in the administration of these provincial capitals we have seen that the local rules and local customs were important, है ना. According to local rules and customs the administration was done. And then we have also seen that the emperor wanted to have his control over the forest and rivers and roads, because rivers and roads were used for transportation by the traders, and whenever the traders transport or travel from one place to another they carry with them valuable goods, है ना. So what is the utility of controlling the rivers and roads by the emperor? The emperor wanted to control the rivers and roads because whenever the traders are using the road and the river, then they will give tax to the king, they will pay tribute to the king, है ना. And as I told you, there is difference between tax and tribute. Tax is something which is compulsory. We will have to give the tax, है ना. इतना परसेंटेज आपको टैक्स देना है तो देना है. You cannot escape. अगर आप नहीं देंगे तो आपको पनिश किया जाएगा. बट जब हम ट्रिब्यूट की बात करते हैं ना, तो दैट ट्रिब्यूट इज अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर. हम जितना चाहें उतना ट्रिब्यूट देते हैं अपनी मर्जी से. तो टैक्स एंड ट्रिब्यूट वर द मेन रीज़न जिसके लिए जो एम्परर थे वो चाहते थे कि जो ये है फॉरेस्ट, जो रिवर्स हैं, रोड्स हैं, वो उनके कंट्रोल में रहें, क्योंकि अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो फिर वो उनसे ट्रेड और उनसे वो टैक्स एंड ट्रिब्यूट का फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा, जो कि उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. और जो ट्रेडर्स आते थे वो अपने साथ बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें लाते थे, जैसे कि इसका जिसके बारे में हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है. अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ वेस्ट से ट्रेडर्स आते थे वो अपने साथ क्या लेकर आते थे? ब्लैंकेट्स लेकर आते थे. नॉर्थ वेस्ट इट वॉज फेमस फॉर ब्लैंकेट. इसी तरह से साउथ इंडिया से जो आते थे वो गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स लेकर आते थे. ठीक है, साउथ इंडिया से जो आते थे वो गोल्ड
एंड प्रेशियस स्टोन्स लेकर आते थे, ठीक है। और इस तरह से जो ये रिसोर्सेज होते थे, इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें ट्रेडिंग में यूज़ हो रही हैं, इनका आना जाना हो रहा है, इनको इनका एक पार्ट वो एज ए ट्रिब्यूट देते थे किंग को। दिस वाज द एम्परर, दिस वाज द बेनिफिट ऑफ द एम्परर। तो ये हमने देख लिया कि कैपिटल किस तरह से एडमिनिस्टर होता था, प्रोविंशियल कैपिटल्स किस तरह से एडमिनिस्टर होते थे, एंड देन अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है कि जो ट्रेडर्स थे, जो कोई रिवर्स और रोड्स को यूज़ करते थे, वो कैसे बेनिफिशियल थे एम्परर के लिए। इसके अलावे भी एक एरिया था जो कि जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिस पर कंट्रोलिंग जो था वो एम्परर का था, एंड दैट वाज फॉरेस्टेड रीजन्स, ठीक है, फॉरेस्टेड रीजन्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। अभी जो फॉरेस्टेड रीजन्स होते थे, इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट बहुत ही रिच सोर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट में मिलती हैं, है ना। लाइक टिम्बर है, टिम्बर क्या हुआ, लकड़ी, है ना। इसी तरह से हनी है, वैक्स है, एलिफेंट्स जो कि किंग के लिए, एम्परर की आर्मी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग थे वो किंग को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते थे, जैसे एलिफेंट है, टिम्बर, हनी, वैक्स, और इस तरह से वो एम्परर के लिए बहुत ही, वो भी दे वर ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द एम्परर। एंड नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज जो है वो क्या था, आई एम राइटिंग हिज नेम ओनली फर्स्ट, मेगास्थनीज। ठीक है, ये जो मेगास्थनीज थे वो कौन थे, ही वॉज एन एम्बेसडर, ठीक है, ही वॉज एन एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है, एम्बेसडर जिसको हम मैसेंजर भी कह सकते हैं, जो मैसेज लेकर आता है, ठीक है, मैसेंजर। जो एम्बेसडर होते हैं उनको हम मैसेंजर किस, अगर समझेंगे तो हमें समझ में आएगी। ऐसे मैसेंजर जिनको कि जो कोई किंग अपॉइंट करता है किसी दूसरे राजा के कोर्ट में जाने के लिए, कुछ संदेशा लेकर के वो जाते हैं, उनको हम एम्बेसडर कहते हैं। दे ब्रिंग सम मैसेजेस फ्रॉम वन किंग टू अनदर किंग। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो मेगास्थनीज था, ही वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता के कोर्ट में इनको भेजा गया था। चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। किसने भेजा था, ही वॉज सेंट बाय अ ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ग्रीक रूलर थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने भेजा था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर नाम के ग्रीक रूलर ने इनके यहाँ इस मैसेंजर को भेजा था। तो मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा पाटलिपुत्रा में, उसका उन्होंने एक अकाउंट लिखा। अकाउंट मतलब वॉट एवर ही सॉ ही रोट इट, रिकॉर्ड उसका रखा उन्होंने, और उसी का एक डिस्क्रिप्शन आपके बुक में दिया गया है। जबकि ओकेज़न क्या था, ओकेज़न ये था कि जो एम्परर है वो अपीयर हो रहे हैं पब्लिक में। ऐसे तो एम्परर पैलेस में रहते हैं, बट ये एक ऐसा ओकेज़न था जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो एम्परर है वो पब्लिक अपीयरेंस दे रहे हैं, और उसके उनका जो पब्लिक अपीयरेंस हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला हुआ है। प्रोसेशन मीन्स टाइप ऑफ रैली, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ। वो इतने बड़े एम्परर थे, अगर वो रास्ते पे निकल रहे हैं तो अकेले तो नहीं निकलेंगे, उनके साथ पूरी की पूरी उनकी फौज होगी, है ना।
तो उसी का वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि सबसे पहले तो देखते हैं कि वो उनको क्या चीज़ पे वो बैठे हुए हैं, वो एक गोल्डन पैलेंक्विन में बैठे हैं, ठीक है। ही इज सिटिंग ऑन अ गोल्डन पैलेंक्विन। ये सारे मेगास्थनीज का डिस्क्रिप्शन है, मेगास्थनीज ने ये डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, ठीक है। ही वॉज सिटिंग ऑन गोल्डन पैलेंक्विन, ठीक है। पैलेंक्विन क्या हुआ ना, पैलेंक्विन हुआ पालकी, जिसको हम लोग हिंदी में पालकी कहते हैं, कि चारों तरफ से लोग उठाए हुए हैं उसको, है ना। उस तरह की पालकी में गोल्डन पालकी, गोल्डन पैलेंक्विन में राजा बैठे हैं और उसके जो गार्ड्स हैं राजा के और एम्परर के, सम्राट के, नॉट राजा, ही इज एन एम्परर। एम्परर के जो गार्ड्स हैं वो एलिफेंट राइड कर रहे हैं और जो एलिफेंट हैं वो गोल्ड से डेकोरेटेड है, गोल्ड एंड सिल्वर से पूरा का पूरे एलिफेंट को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। और जो किंग के जो गार्ड्स हैं उनमें से कुछ गार्ड्स ऐसे भी हैं जो अपने साथ ट्री लेकर चल रहे हैं, दे आर कैरिंग ट्री विद देम, और वो जो ट्री लेकर चल रहे हैं उस ट्री पे बर्ड्स भी हैं, है ना। ट्री पे लाइव बर्ड्स, ये नहीं कि बर्ड्स की कोई स्टैचू या फोटो या एनीथिंग लाइक दैट, लाइव बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री। एंड उसमें एक पैरट्स का फोक है, फोक ऑफ पैरट, फोक ऑफ पैरट क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पैरट। और ये पैरट कैसी पैरट थी, द पैरट वॉज ट्रेन्ड, ये पैरट ट्रेन्ड पैरट थी। क्यों, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि ये जो फोक ऑफ पैरट है वो राजा के चारों तरफ, राजा के सिर के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही थी, जैसे एक सिर पे जो एक वो होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि हैलो होता है सिर, राजा जो है उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है सम्राट को कि उसके सिर के चारों तरफ वो घूम रही हैं, उनको ट्रेनिंग इस तरह से दी गई थी, ठीक है। और किंग जो है उसके चारों तरफ आर्म्ड वुमेन, एक तो वो पालकी में बैठे हैं, पैलेंक्विन में बैठे हैं, और उनके चारों तरफ जो आर्म्ड वुमेन है वो उनके को घेरी हुई है, उनके प्रोटेक्शन के। और ये है कि किंग जो एम्परर था उसको हमेशा एक फियर रहता था कि कोई उसको समवन मे किल हिम, है ना, समवन मे ट्राई टू किल, कोई उसको मारने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, है ना। तो ये डर हमेशा रहता था कि कोई भी उनको मारने की कोशिश कर सकता था। तो इस कारण से बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते थे। जब वो पैलेस में होता था तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते थे, लाइक उसका जो भी खाना बनता था ना, उसको पहले सर्वेंट जो है वो टेस्ट कर लेते थे कि कहीं खाने में किसी ने चुपके से पॉइजन मिला दिया हो, तो फिर तो किंग उसको खाएगा और किंग विल डाई। तो पहले कोई एक जो सर्वेंट है वो उसको टेस्ट करके देख लेता था कि अगर वो ठीक रहा, सर्वेंट को कुछ भी नहीं हुआ उस खाना को खाने से, यानी कि उस खाने में पॉइजन नहीं है, एंड देन ओनली द किंग विल हैव दैट फूड, है ना। तो इस तरह से ये होता है और होता था। और एक चीज और थी कि द किंग नेवर स्लीप्स इन द सेम रूम, एक ही रूम में वो 2 दिन लगातार नहीं सोता था। For 2 nights he used to sleep in another room. क्यों? क्योंकि अगर सबको पता है कि राजा इसी कमरे में सोता है, एवरी डे द किंग यूज्ड टू स्लीप इन द सेम रूम। अगर ऐसा होता तो क्या होता, एनीवन मे कम इन द नाइट और राजा को मार सकता था। लेकिन अगर राजा अपना रूम बदलता रहेगा तो क्या होगा कि नो वन विल बी नोइंग दैट द किंग इज स्लीपिंग इन विच ऑफ द रूम्स, तो किंग विल बी सेव्ड। इस तरह से ये होता था, ठीक है। और उन्होंने मेगास्थनीज ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, इट्स अबाउट पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के बारे में उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्रा जो है वो एक बहुत ही बड़ा इट वॉज अ लार्ज एंड ब्यूटिफुल सिटी एंड इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। एज वी हैव सीन, जब हमने पहले मगध जनपद के महाजनपद के बारे में पढ़ा था तभी हमने 45 सिटीज के बारे में भी पढ़ा था
कि उस समय जो सिटीज होते थे महाजनपद के वो फोर्टिफाइड होते थे, कैपिटल सिटीज। पाटलिपुत्र वॉज अ कैपिटल सिटी। तो पाटलिपुत्र आज भी, पहले भी फोर्टिफाइड था और आज भी, जबकि वहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी का रूल चल रहा है, मौर्यन एम्पायर का रूल चल रहा है, तो भी वो उसके चारों तरफ मैसिव वॉल जो है वो बने हुए हैं। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। जो पाटलिपुत्र सिटी है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो वॉल बने हुए हैं, उसके चारों तरफ जो वॉल बने हुए हैं उसमें क्या देखते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। तो 570 टावर्स का क्या मतलब हो रहा है? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर्स बने हुए जहां से कि बहुत दूर दूर तक नजर रखी जाती है। अगर कोई भी अटैक करने आ रहा है तो ये जो ऊंचाई, टावर का मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग है ना, तो वहां से पता चल जाएगा कि कोई हम पे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो फिर तैयारी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर टेलीस्कोप लगा करके वो हमेशा देखते रहते थे कि कहीं से कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के 570 टावर्स थे और गेट्स भी हुआ करते थे। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि चारों तरफ से मतलब एंटर करने के लिए गेट हुई करती थी। अगर गेट नहीं होगा तो लोग हाउ विल दे एंटर एंड एग्जिट? तो फॉर दैट पर्पस देयर वर गेट्स। और जो हाउस होते थे पाटलिपुत्रा शहर के अंदर, जो हाउस होते थे वो 2 और 3 स्टोरी होते थे, ठीक है। और ये वुड और मड ब्रिक के बने होते थे, लकड़ी के, और मिट्टी की जो ब्रिक होती है, पक्का ब्रिक नहीं होता था, मिट्टी की ब्रिक जो होती है उससे बना हुआ होता था। और जो किंग का पैलेस होता था वो भी वुड का बना होता था। और उसको स्टोन कार्विंग से, स्टोन्स पे कार्विंग करके, जो नुकीली एक टूल होती है उससे ठोक ठोक के डिजाइन्स बना के, जिसको हम कार्विंग कहते हैं, है ना, उसी को कार्विंग कहा जाता है। कार्व, उसको डिग कर करके एक डिजाइन, एक पैटर्न बनाना, दैट इज नोन एज स्टोन कार्विंग। तो किंग का जो पैलेस था वो वुड का बना हुआ था, जो कि स्टोन कार्विंग से डेकोरेटेड था। एंड उसके चारों तरफ गार्डन हुआ करते थे और एनक्लोजर्स भी थे। एनक्लोजर्स मतलब एनक्लोज्ड एरियाज, है ना, जहां पर कि बर्ड्स को रखा जाता था, क्योंकि अगर एकदम ओपन में रखेंगे तो बर्ड्स तो उड़ जा सकती हैं, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि पाटलिपुत्रा का ये सारी सिस्टम हम देख रहे हैं। अब इसमें अगर एक चीज देखें तो जो ब्रिक्स हमने देखा, जो ब्रिक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज हुई थी, वो ब्रिक्स कैसी थी? वो ब्रिक्स पक्की ब्रिक्स थी। हजारों साल बाद वो ब्रिक्स जब एक्सकेवेट, रेलवे लाइन बन रही थी, जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना, जब वो रेलवे लाइन बन रही थी हजारों साल बाद, तो वो ब्रिक्स उस समय भी बड़े अच्छे कंडीशन में थे और उन ब्रिक्स को कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया गया। लेकिन यहाँ जो ब्रिक्स हम देख रहे हैं वो कैसे के बने हुए हैं? मड्स के बने हुए हैं, कच्ची ब्रिक्स हैं, दे आर मड ब्रिक्स। इसके अलावे और चीजें जो देख रहे हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड सिटीज होने लगे थे, ऐसा फोर्टिफिकेशन सिटी के चारों तरफ नहीं होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद नाउ वी विल नो अबाउट अशोका, क्योंकि हमने वी नो दैट दिस मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय Chandragupta Maurya, and then his son Bindusar becomes the king, and after Bindusar Ashoka becomes the king, and Ashoka was a unique ruler. What was unique about Ashoka? Why we call Ashoka a unique ruler? Ashoka यूनिक रूलर, ठीक है। अब जो मौर्यन रूलर्स हैं उनमें जो सबसे मोस्ट फेमस रूलर था वो अशोका ही था। ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर।
एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट अशोका, आखिर अशोका के बारे में ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसा कौन सा स्पेशल बात है। तो अशोका जो था, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेजेस टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के थ्रू उसने लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचाया, बिकॉज ही कंसिडर्ड हिज मैसेजेस एज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियली दे वर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम उन मैसेजेस को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो मैसेजेस जो थे एक्चुअली दे आर रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। जिस तरह की उसमें बातें की गई हैं वो आज के समय के लिए भी पूरी तरह से रेलिवेंट है। और यही कारण था कि अशोका वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द वर्सेटाइलिटी ऑफ हिज मैसेजेस। कितने वर्सेटाइल है उनका मैसेज। ही वॉज नोइंग कितना न तो ये किसी एक टाइम का मैसेज है, न किसी एक जगह का मैसेज है, बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने मैसेज दिया, पूरे समय के लिए। आज भी उन मैसेजेस को पढ़ेंगे हम तो हमें यही समझ में आता है कि वो आज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उतने ही रेलिवेंट है। तो इसलिए अशोका ने अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शंस का फॉर्म दिया। जैसे कि हमने देखा, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस वर प्रोवाइडेड सच सोर्सेज विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट सरफेस पे लिखे होते हैं। लेकिन जो स्टोन पे लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस हैं वो पेरिशेबल नहीं होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, वो हजारों साल तक वैसे ही पड़े रहते हैं। और इसलिए अशोका ने अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शंस में लिखा और लोगों तक पहुंचाया। न सिर्फ अपने समय के लोगों तक पहुंचाया बल्कि हम भी उनको पढ़ सक रहे हैं। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ अशोका। This is about what is we say why Ashoka was a unique ruler, because he was the first ruler who took his messages to the people through inscriptions. And what was the language used in these inscriptions? The language was Prakrit, ठीक है, जो कि गौतम बुद्धा ने बताया था, जिस लैंग्वेज में पढ़ाया था। तो inscriptions were written in Prakrit language. And what was the script of this language? What was the script of this language? The script is Brahmi. ठीक है, इसके स्क्रिप्ट को हम ब्राह्मी कहते हैं और जो लैंग्वेज है दैट इज प्राकृत। ओके, अब हम लोग अशोका के बारे में और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, बिकॉज अशोका ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, एक ऐसा रूलर हमारे कंट्री का जिसको कि हम हमेशा याद करेंगे। एंड उनको याद करने के पीछे उनके इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके मैसेजेस हैं, एंड वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज द कलिंगा वॉर। कलिंगा क्या है? कलिंगा इज द नेम ऑफ अ प्लेस। कौन सा प्लेस? कलिंगा जो है वो एंशिएंट नेम है कोस्टल ओडिशा का, ठीक है। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कोस्टल ओडिशा का ये नाम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अशोका जो था वो उसने कलिंगा के लिए, कलिंगा को कॉन्कर करने के लिए, इन ऑर्डर टू कॉन्कर कलिंगा, कॉन्कर मतलब CONQUER, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कर? कॉन्कर मतलब जीतने के लिए। कलिंगा को अपने कंट्रोल में लेने के लिए अशोका ने एक लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो बहुत दिनों से कलिंगा को जीतने की कोशिश हो रही थी मौर्यन एम्पायर की तरफ से, मौर्यन एम्परर्स की तरफ से। बिंदुसार ने भी इसके लिए एफर्ट किया था, अशोका के फादर ने, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन कंकरिंग कलिंगा, बिकॉज कलिंगा बहुत ही पावरफुल किंगडम था। लेकिन अशोका जो है
वो बहुत ही महान राजा थे, है ना, बहुत पावरफुल किंग थे। तो उन्होंने इसमें सक्सेस उनको मिल गया, ही वॉज एबल टू कंकर कलिंगा। लेकिन इस वॉर में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जान गई। कोई भी वॉर होता है ना, किसी भी लेवल की वॉर हो तो उसमें लॉस ऑफ लाइफ तो होना ही होना है ना। कभी थोड़ा कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो हम देख रहे हैं कलिंगा की वॉर, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वॉर में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, लोगों की जानें गई और इतना सब कुछ हुआ कि वो जो वॉर फील्ड था उसमें लोगों को मरे पड़े देख करके अशोका जो है वो बहुत ही, मतलब उनके दिल में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स, घबराहट हुई कि इतने सारे लोगों को की जान चली गई, मैंने मारा। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही अटैक्ड कलिंगा, है ना, कलिंगा पर उसने अटैक किया था। तो इन सब डेथ्स के लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने लगे और उन्होंने इतना ज़्यादा वो मूव्ड हुए इस वायलेंस और ब्लडशेड को देख करके दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। अब मुझे कोई भी वॉर नहीं लड़नी है, अब मुझे किसी भी तरह का वायलेंस, ब्लडशेड नहीं करना है, लोगों की जान नहीं लेनी है। ठीक है, तो इस तरह का डिसीजन उन्होंने लिया। ये डिसीजन लेना अशोका का एक बहुत ही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अशोका ने जिस समय गिव अप किया कि अब वो कनकर नहीं करेंगे, अब वो कोई वॉर नहीं लड़ेंगे, एट दैट टाइम ही वॉज द विनर, ही वॉज नॉट द लूजर। कई बार होता है ना, हम किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, बहुत बड़ी एफर्ट करते हैं, फिर वो चीज़ हमें नहीं अगर मिल पाती तो फिर हम बोलते चलो छोड़ो, अब हम इसके पीछे नहीं लगेंगे, अब मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो दैट इज कि वी आर गिविंग अप बिकॉज वी वर नॉट एबल टू अचीव दैट, है ना, हमें वो मिला नहीं तो हम उसको कहेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। बट अशोका ने जो किया वो क्या किया, अशोका ने जीतने के बाद वॉर को गिव अप कर दिया कि अब मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है ना। तो ये ऐसा एक ही एग्जाम्पल हमको मिलता है। इट इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ अशोका इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। जीतने के बाद छोड़ना बहुत बड़ी बात है ना। तो चाहता तो वो क्या, अगर अशोका चाहता तो कलिंगा को जीतने के बाद तो उसका एम्पायर और भी बड़ा हो गया, अब तो वो और भी बड़ा राजा बन जाता, और भी ज़्यादा टेरिटरी को अपने मौर्यन एम्पायर में मिलाता जाता, है ना। तो चाहता तो वो भी बहुत कुछ कर सकता था, बट उसने ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अशोका ने वॉर के रास्ते को छोड़ करके धम्मा को अपना लिया। ही अडॉप्टेड धम्मा। सो धम्मा, व्हाट इज दिस धम्मा? धम्मा इज अ प्राकृत वर्ड फॉर धर्म, जिसको हम धर्म कहते हैं हिंदी में, उसी धर्म को प्राकृत लैंग्वेज में धम्मा कहते हैं। दिस इज धर्म। ठीक है, तो अब ये क्या है, अशोका ने जो जिस धम्मा को अडॉप्ट किया उसमें क्या, उसका क्या मतलब है? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो उसमें ये है कि ये एक टाइप ऑफ धर्म है। जैसे कि हमने बुद्धिज्म ही है, ये बुद्धिज्म को ही अशोका ने आगे बढ़ाया। और इसके अंदर क्या हम देखते हैं कि किसी भी गॉड की वर्शिप नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि उस समय जो वैदिक धर्म था, वैदिक रिलीजन था, उसमें आइडल्स की पूजा होती थी, आइडल्स का वर्शिप होता था और सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, है ना, एनिमल्स की सैक्रिफाइसेस होती थी। तो अशोका का जो धम्मा है वो क्या कहता है कि गॉड की वर्शिप नहीं करनी है, इसमें किसी तरह के भगवान की मूर्ति पूजा जिसको हम कहते हैं ना, आइडल वर्शिप वाज नॉट देयर, एंड सैक्रिफाइस भी नहीं करना है, किसी का भी सैक्रिफाइस, एनिमल का सैक्रिफाइस नहीं करना है। और उनको ये लगता था, इट वाज द व्यू ऑफ अशोका दैट जस्ट जैसे फादर होते हैं ना, अपने बच्चों को
पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, उसी तरह से उनका भी he has also the duty of a father. What is the duty of the father? To teach his children. तो उसी तरह से जो उसके सब्जेक्ट हैं, जो उसकी जनता है, जो प्रजा है ना, प्रजा जो है, लोग जो है, उनको इंस्ट्रक्ट करें, उनको हम सिखाएं, उनको हम समझाएं लाइफ में कैसे क्या करना है. तो he considered himself as a father, and the duty of the father was to instruct his children. तो being a king, emperor, his duty was to instruct his subjects. ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को वो इंस्ट्रक्ट करते थे. तो इसको हम आगे और भी इसके बारे में देखेंगे कल. ठीक है.